کی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن جی ہمارے جو معصوم اہل تشیع برادرز ہیں نا، ان کی جی جانب سے جو ہمیں ایک شکایت ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے چلے پاؤں ٹھہرے نا، تک سنجار ٹھہر جا پلیز ٹھہر جا یار، ایسے ایسی جڑانا وضاحت کو نہیں دین بیٹھے. اچھا حیدر صاحب، مرزا انجینئر نے مولا علی پاک کی ذات مبارکہ پہ ایک الزام لگایا کہ آپ سرکار نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ موٹو اس کے میں تو نا، موٹو ایک بھائی سیکنڈ حیدر بھائی، بھائی موٹو میری بات بات سنو، سنا، اس سے یہ سوال میں بنتا یہ نہیں. بھائی سنجار ٹھہر جا، کوئی بھائی سنجار آپ کا ٹھہر جا، آپ مجھے کی پتہ کھلو جا یار، بھائی میں آپ سمجھنا. کی بات مجھے نہیں سمجھ آئی کوئی بھی، مجھے ان کی بات سننے دیں پہلے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کی سنتا ہوں. اب بھی بیچ میں مرزا علی انجینئر کھلو لے جا، کے آ گئے مفتی مجھے صاحب ان کی آئے بات. نے، کھلو جا، مفتی صاحب آئے نے، کھلو جا حیدر بھائی، ٹھہر جو یار، مفتی صاحب آئے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. جی وعلیکم السلام ورحمۃ استاد جی سوال یہی ہوندا پیا، مولا علی پاک نے خوارج دے جنازے پڑھائے سن کہ نہیں سن پڑھائے؟ تے کوئی جواب نہیں لگا دین، مرضی بھی نہیں لگے دین. میں جیڑا سویر دا سوال سی پوچھنے پیا، کوئی جواب نہیں مرضی بھی دیندے پے، کوئی بھی نہیں دیندا. اشیاء نو پوچھیے، اشیاء بھی جواب نہیں دے. نہیں میں واہوا دیر دا سننا پیا تھوڑی بہ کے فور یہ یو. کوئی مسئلہ بنیا ہے. آواز آ بھائی رہی ہے تو میری؟ میں کہا فور یو تے بہ کے واہوا دیر دی سننا پیا تے مرزئی تے ہن کوئی نہیں سامنے تواڈے آئے گا، مرزئی لک چھپ گئے، مرزئیاں نے کتھے ٹائے چڑھنا. اور دوسری بات ہے وے کہ یار اے جڑا کم تساں بھی شروع کیتا ہے نا، پتہ نہیں کون لگا سی اگے سٹیکر آیا ہے تے او نام بھی سارے لک گئے نے. اچھا میرے بیٹے نہیں نہیں لگے سرکار، تانوں کہن دے نے، آپ لوگوں کو بول رہے ہیں، مجھے نہیں میرا بول رہے. نام تو سنجار ہے جی، سنجار. سنجار ہے نا، میرا نام سنجار حیدر ہے. بھائی جڑا سوال کر رہے سن نا انہاں اگے، وہ ہوں مینوں نہیں لگدا کہ کوئی صحیح جہا سوال ہوئے. کون سا ان جی؟ کے ٹاپک ہی کوئی نہیں ہے یار. اور کون حیدر سا بھائی نے سوال مفتی صاحب؟ اچھی بات کی تھی، حیدر بھائی نے اچھی بات کی. مفتی صاحب آپ 2 منٹ بیٹھے، میں ان سے اور اچھی باتیں کروں، تھوڑے سے سوال کروں، پھر آپ بتائیے گا اچھی نہیں باتیں جی، آ رہی. سوال نہیں بنتا ہی نہیں ہے، یہ فرقہ کون سا؟ واریت نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی سوال، یہ پہلے انتشار کم میں کیا کہ یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے یہ کوئی کیا بات ہے؟ میں نہیں مفتی سمجھتا صاحب، یہ کوئی. مفتی صاحب یہ جو صاحب قادیانی ہے، ایک منٹ حضرت صاحب، ایک منٹ. جی جی بولیں بولیں. یہ جو قادیانی ہے، انہوں نے، چلو ٹھیک ہے، پھر کبھی صحیح بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے نا آپ سے ایک سوال کرنا ہے، قدرتی آپ بیٹھ گئے ہیں، مجھے ایک بات بتا دے حیدر بھائی بھائی. ذرا تھوڑا سا معذرت. نہیں 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 نہیں، کوئی ایسی بات نہیں بھائی جی، کروں گا میں کوئی. کہہ رہا ہوں میں بات کر لوں، آپ بعد میں اوکے کر اوکے، لیجیے. کریں 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 سرکار، کریں آپ، کریں آپ. یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی والا معاملے کب تک چلیں گے؟ پتہ نہیں کب تک چلیں گے یہ. نہیں میں آپ سے نہیں لگا، میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر آپ اوکے اوکے مائک اوکے سرکار، اوکے اوکے، میں میوٹ کر. ابھی تو فرقے کی اگر بات کرتی ہے نا، فرقوں کی بات کرتی ہیں تو پہلے ہوتا تھا سنی شیعہ. سنیوں کے اندر فرقے بنے تو کوئی 500 فرقہ سنیوں کے اندر بن گئے. شیعوں کی بات کریں تو شیعوں کے اندر پھر کوئی آگے 500 بن چکے ہوئے. دیوبندی بنے، وہابی بنے تو بریلوی بنے، بریلویوں کے اندر پھر شکیں کوئی 500، دیوبندیوں کے اندر 500 اور وہابیوں کے اندر 500 نظریات پیدا ہو گئے. چونکہ یہاں اکثریت سنیوں کی ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے، میں خود بھی سنی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. یا ہمارے سنیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ ہر مولوی کا اپنا ایک فرقہ ہے، اپنی جماعت ہے.
और उस मौलवी साहब के जो मुरीदीन हैं या शिगिर्द, वो दूसरे किसी मौलवी के मुरीदीन या शिगिर्दों को एक आंख भी नहीं बांधते। कुफर के फतवे, खिंचा तुरही, लानत मलामत, गाली गलोच वो चल रही। यूं समझ लें कि जितने मौलवी उतने फिरके, उतने ग्रोह, उतने नजरियात, उतनी लड़ाई। तो ये ओपन मीडिया के ऊपर कम से कम नहीं, ये अच्छी चीजें नहीं लगती। सुन्नी शिया वाबी देवबंदी, अभी हमें एक जमयत की जरूरत है। दुनिया हाल में जंग बनी हुई है, इधर सुन्नी शिया वाबी शुरू हुआ। कमाल है यार। मुफ्ती साहब एक सवाल करना, अगर आप बुरा ना माने। नहीं, बुरा असी कभी मनाया ही नहीं। हाँ जी, चलो शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं ऐसे इत्तेहाद पर, ठीक है ना, ऐसे जान लोग, भाई नहीं मैं ऐसे ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, आप मेरे बड़े हैं, बल्कि आपके सामने तो मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं कभी भी बोलूंगा। ऐसे इत्तेहाद का मुफ्ती साहब हमने क्या करना है कि हमारे साथ हमारे कंधा मिला के वो शख्स खड़ा हो जो अम्मा आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा को नंगी गालियां देता हो, हमारे बाएं जानब वो शख्स खड़ा हो जो हजरत अबू बकर भाई जी सिद्दीक को छड़ गाली। दियो, सारे ही वेखे ने मामले। इन्ने जज्बाती जड़ा ना मौकफ नहीं इख्तियार करी दे। तो मुफ्ती साहब फिर उनको भी अपने साथ मिला लें। साहब ही चलो ना जरा एक मिनट। इन्ना नहीं मुसलमाना नूं रहन दियो चैन नाल यार। ਤੁਹਾਨੂੰ मुसलमाना दा चैन गवारा नहीं है। मुफ्ती साहब उन लोगों को भी अपने साथ मिला लें जो हजरत अली को गालियां देते हैं। यार फिर वही जज्बाती गल्लां नहीं करी दी होंदी। मुफ्ती साहब देखें ना, मैं क्या नहीं ना जज्बाती गल्लां इंज दियां नहीं करी दियां कि मौला अली दे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਹੇਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀਏ, ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ कदी कोई वेख्या है? तुसा दसो। मुफ्ती साहब कादियानी ने जो नबी बनाया, कादियानियों की तरफ आ गए हो तुसी। मैं तो मुसलमानों की गल कहना पिया। बात मुसलमानों की करो, अभी जो गल कोई करन वाली करो कि मुसलमानों नु चैन नाल बहन दियो ना, इंज बखेड़े पाओ तुसी। मतलब नहीं यार करीदा संजार साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी देर यार एक मिनट मैंने थोड़ा जिहा सवाल है पिया करन दे, फिर तू कर लई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम मुफ्ती साहब एक सवाल सी और ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ। अच्छा सॉरी कर लो, मेरा थोड़ा जिहा इल्मी संचार सवाल ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ, बड़ा मजबूर जा हो के मैं काल ते आया वहां, ते काल भी मैं खुद पाई है, नहीं ते मेरा तरीका कार नहीं हुंदा। मुंडे जानते ने मैनू, मैं काल अमूमी तौर ते पांदा ही नहीं। कोई काल मैनू करे ते करे, नहीं ते मैं अमूमी काला नहीं पांदा। मैं फोर यू ते पहले बह के सुने, पहले पानी चेक किया कि पानी दा बहाव की है, हाँ जी, हालातों वाकयात वेखे ने, फिर मैं काल ते आया। वक्त पास, टाइम पास आस्ते होर बड़े कम ने यार। इस नाल तुसी कोई मैच मूच ला लिया करो। एक कंजरी बैठी होए ते नाल तुसी बह जाओ ते चलो एक दूजे दी पनिशमेंट करो, कोई नोट भी आनगे, डॉलर भी आनगे, मुझ टाइम पास हो जाएगा बेहतरीन। लेकिन टाइम पास का जिहड़ा तरीका कार तुसा अपनाया होया है ना, यह ठीक नहीं कि मजहब नूं तुसी एक खिलवाड़ बनाया होया। हाँ जी, आने वाले नूं पुछया है बकायदा, हाँ जी मसलक दसिया जे जरा, तुहाडा मसलक किहड़ा है? ये की गल होई यार, ये कोई तरीका ते नहीं है। कोई मसलक दी गल करदे हो, मसलक ते हर बंदे दा एक अलग है।
हर बंदे दा जिन्नी समझ लो जितने मुसलमान ने इस रूए जमीन दे उतने मसालक ने, उतने फिरके हैं। वो एक बंदा खुद अपने अंदर एक फिरका है, ਉਹਦੇ अपनी नजरियात, अपनी सोच, अपनी फिक्र। मुसलमानों ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਸੁन्नी ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਹਾਬੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ज्यादा दूर की जाना जे मैं मदीना मुनव्वरा हुन्ना वा, मस्जिद नबी शरीफ च जाके वेख लो, जाओ तमाम मकातबे फिक्र या मसालक फिरके जो भी कहंदे हो तुसी, ए तुसां रखे ने नाम, वो सारे उत्थे हुंदे ने, इकट्ठे हुंदे ने, कोई रोला नहीं, कोई रपड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। तकरीबन पाकिस्तान पूरे च असीं यही वेखने। उलमा की गल करते हो, सारे सारे अकाबरीन उलमा जेडे वाकई उलमा ने, तमाम मकातबे फिक्र दे जयद उलमा, वो सारे इंज ने। मुफ्ती मुनीबर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इधरों शियां दे विचों जवाद नकवी साहब ने, इंज सारे मतलब एहतशाम इलाही जई साहब अहले हदीस की तरफों ए वड्डे लोग ने, वो सारे इंज ने। ते साडे इत्थे माशाअल्लाह टिकटाक दे उत्ते वेखण नूं मिलदा है गाली गलोच, ओ तेरी भैन दी, तेरी मां दी, ओ काफर, तू काफर, मैं काफर। कमाल नहीं हो। टाइम पास दे होर बड़े तरीके ने मेरा पुत्तर, ना करया करो। की कम तुसां शुरू कीते ने? चार वेले इकट्ठे हो जांदे ने, कोई दुनिया दा कम नहीं, वेली दुनिया, कोई कम नहीं, कोई कम करन वाला कर लो यार। यकीन मानो मैं बड़ी तकलीफ दे विच तुहानूं मैं कॉल पाई है, मैं क्या मेरे को जबत नहीं हो पाया, मैं क्या की करदे ने पे वेले बैठी है वेली दुनिया। ओ कासम ते माशाअल्लाह है ही वेला ना, दुनिया दा सब तो बड़ा वेला, मिस्टर मोटू पतलू। ते वो चार वेलियां नूं बिठा लैंदा ते चल बाई थड़ी, ते खुद वो ड्राइविंग करदा रहिंदा, चुप करके बैठा रहिंदा ते लड़ाई आसे इन्हां नूं अगे कर दिंदा। चलो भाई कुलो, आपस च कुलो, मैं तुहाडा घोल कराना। अल्लाह मान वाला हफीज, अल्लाह मान वाला हफीज। हाँ जी, वकास भाई कर लें सवाल, आपने क्या कर? अच्छा, मेरा सवाल ਇਹ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। कौन मर ਨਿਕਾਹ गया? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਣੋ, ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਕਾਸਮ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਸ ਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਚ ਵਿਹਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਘੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ भाई यार, वालेकुम सलाम। झूठ बोल रहा है कासिम हजरत, ये मेरा कोई करवाया हुआ मसला नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये कि यार अल्लाह दे बंदियो ए मसले ए चीज़ां खत्म होनियां ने, दसो कदी खत्म नहीं हजरत, एक मसला एक नया खड़ा हो गया ना। प्रॉब्लम ये है कि शाम से और दमिश्क वगैरह की साइड के जो आपको पता है कि ये पहले शिया तसल्लुत के अंदर रहे और यहाँ पे बड़ा जुल्म हुआ अहले सुन्नत की अवाम पर। तो शिया जब तसल्लुत यहाँ से ख़त्म हुआ तो नवासिब का एक अरबी नवासिब ने एक अपना फितना पाकिस्तानियों के अंदर इंपोर्ट किया ना, जिसकी वजह से कुछ लड़के इंजीनियर पार्टी के टूट कर, जो कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पहले बकवासात किया करते थे, वो टूट कर
आ गए हैं हजरत अली पर बकवासात करने के लिए, आपको मालूम नहीं हुआ नहीं होगा नहीं इस ओ मौके के जुबैर बारे में? ओ तू बड़ी दूर टुर गया, किथे टुर गया, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਰਮਾ ਲਿਆ। यार ये नासबी नुसबी है भाई, ड्रामेबाजी, कोई भी नासबी नहीं है। अल्लाह की ये कसम बात मुफ्ती साहब है। नहीं कोई सुन लो मैं दसना सब जानना, मैं सारियां तारीखां जानना वा। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਬੀ ਜਾਂ ਰਾਫਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ आ रहा वो ਹੁੰਦਾ नहीं, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कोई और हैं। वो जो हाथी के बड़े बड़े दांत नजर आ रहे होते हैं वो असल में खाने वाले नहीं होते, वो अंदर होते हैं, वो तो नजर नहीं होते, वो अंदर होते हैं, वो तो नजर भी। आप देखिए क्या समझते संजार हैं नाम असल की, क्या है फॉर मुफ्ती साहब? एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। संजार नाम की एक आईडी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुन रहा था, मैं नहीं जानता बंदा कौन, ठीक है। अब वो बंदा जो अपने आप को दिखा रहा है, इससे पर्दा कुछ हो तो आप इस चीज की क्या गारंटी देंगे? हाँ, ये बात तो आपकी सही है हजरत के जहां पे ये है दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, असल कुछ और है, तो ये कोई नासबी नुसबी दुनिया में है ही कोई नहीं। मुफ्ती साहब माज़अल्लाह खत्म हो गया हजरत काम। अली हसन हुसैन को और अहले बैत को नंगी गालियां दी जा रही है माज़अल्लाह, बिल्कुल बहाना वो गालियां। एथीएस्ट लोग हैं, वो मुसलमान भी नहीं है, वो एथीएस्ट दैरी हैं, वो पिस्से पर्दा कादियानीस हैं, पिस्से पर्दा मुल्हिदीन है, वो पिस्से पर्दा कुछ और है, वो अपना आप दिखाते कुछ और है। यहाँ इसी टिकटॉक के ऊपर वो कुरानिस्ट बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हम कुरानिस्ट हैं, लेकिन असल में वो कुरानिस्ट नहीं है, वो है यहूदी, असल में उर्दू स्पीकिंग यहूदी है, बनी इसराइल से उनका ताल्लुक है। तो ये है कि वो अब देखिए अपना नाम एक इस्तेमाल कर रहे हैं कुरानिस्ट का, कि हम कुरानिस्ट हैं, हालांकि कुरानिस्ट नहीं है। मेरी कई दफा उनसे गुफ्तगू हुई है, मुकालमात हुए हैं, कुरानिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया कुछ और जाता है, होता असल कुछ और होता है। संजार नाराज नहीं होना भाई, मैंने वैसे मिसाल दी है, इसको हकीकत हाल पर नहीं लेना, मिसाल दी है। एक वो नाम था आपका, तो उस वजह से मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो समझाने के लिए ज़िया को कि असल कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है, उसके ऊपर पर्दे डाल के फेक आईडीज बनाई जाती हैं। अच्छा एक बात ये, इन लोगों को आप जब देखेंगे ना ये अपनी असल शक्ल दिखाएंगे, कभी भी नहीं, कैमरा ऑन तो हो ही नहीं ना सकता, मर जाओगे तुसी, इन्हां ते कैमरे ऑन नहीं करवा सकते। ये अपनी हकीकत को छुपाते हैं। फेक आईडी जो होती है ना, वो अपनी हकीकत को छुपा के रखती है। आईडीज बनाएंगे इस तरह की, असल नाम को दुनिया का कोई बंदा जान ही नहीं सकता कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर इस बंदे का नाम क्या है, इसको घर किस नाम से पुकारते हैं, ना हो ही नहीं सकता, छुपाते हैं। कोई 50 किस्म की आईडीज बनाई होंगी। अच्छा हत्ता कि कभी कभी तस्वीर लगी होगी, लोग समझ रहे होंगे कि ये है, लेकिन नहीं है, वो तस्वीर भी असली नहीं होती, वो भी फेक होती है। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे किसी बात पे यकीन है ही नहीं। हाँ इस सूरत हाल में ये है, उसूलों के ऊपर रह के डिबेट्स कीजिए, कुछ उसूल बनाए जाए, हाँ उन उसूलों के तहत डिबेट करेंगे, बस कोई गाली गलोच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इल्जाम नहीं, कोई बोहतान नहीं, बिल्कुल एक जो हकीकत हाल है उसके ऊपर। मुफ्ती साहब ये बताएं चौधरी कासिम किधर है? बड़ा टाइम हो गया बात नहीं उससे, खत्म नबूवत का हमारा पुराना मुजाहिद था चौधरी कासिम। हाँ चौधरी कासिम जो है ना, वो आजकल बड़े बड़े जनाब गहरे मामलात के अंदर पड़ा हुआ है। बहुत सुना है मैंने कि कादियानियों के अंदर तक घुस चुका सुनने में वो ना उसको मैंने टिकटॉक पे लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुपों में एक्टिव है, लेकिन व्हाट्सएप फेल हो चुकी है, व्हाट्सएप बड़े अरसे की फेल हो चुकी है। मैंने मेरा एक सवाल वो तो अगर मुफ्ती साहब ये जो पहले कादियानी थे, आपको याद होगा ये कर्नल याहिया वगैरह पहले टेलीग्राम पर थे, जब वहां से जूते खाए मुसलमानों से तो व्हाट्सएप पे ग्रुपे बनाए इन लोगों ने, वहां से जूते खाए, फिर फेसबुक और टिकटॉक पर आ गए, अब यहाँ पर दंगा फसाद। ये हैदर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, हैदर भाई कर ले।
जी भाई मैं ना, मेरा बस एक ही सवाल है कि खुदारा ये ब्रॉड पे बैठ के इस तरह की बातें आपस में ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। कल भी नहीं, वो इनको आप सवाल करें, आप मैं आपको तजवीज बस मैंने दे दी है, नहीं नहीं, वो आपने वो दे दी है तजवीज दे दी है, वो सबको समझ आ गई है। क्योंकि कल भी मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी थी। ये क्या आपका मर्दइयों का समझ में आता है, ये सुन्नी शिया की ना लेके बैठेंगे। और लास्ट पे मैं एक ही शेर इकबाल साहब का बोलूँगा, वो उन्होंने बड़ा प्यारा सा शेर लिखा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जाकीर भी वो फितना, असल में होता ना ये हक है कि के पता लिए क्या, उठे तो हमारा शमशीर भी निजाम फितना। एक बहुत अच्छा चल रहा जी था, जी कुछ अरसे से बहुत अच्छा एक निजाम चल रहा था। ये कासिम भी हमारे साथ ही होता था पहले, और कासिम है, अबू हसन है, तो उस्मान रिजवी है, तो ये सारे एक ही थे हम। लेकिन फिर बीच में कुछ इनकलाबात है, इनकलाबात, तो वो फिर कुछ इनको दोस्त ऐसे मिले इसी टिकटॉक के ऊपर के जो बड़े जज्बाती थे। उनको जो है ना वो सिर्फ अपने आप के अंदर ही इस्लाम नजर आ रहा था, और दूसरों को वो सब काफर बनाए जा रहे थे। वो भाभी है वो काफर, हाँ देवबंदी है वो काफर, जी वो जी जी शी है जी वो काफर, वो फलां। अच्छा, सुन्नियों को भी नहीं ना उन्होंने छोड़ा, माफ नहीं किया। सुन्नियों के अंदर भी फलां मौलवी काफर, तो वो फलां मौलवी वाला काफर है, वो भी काफर। तो जी जी मुराद ये जज्बातियात बस, और बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल। तो मौलवी साहब ऐसी बहुत अच्छा ऐसी लगा। लोगों की रफाकत इनको मिली, तो इन्होंने फिर अलग ही अपने खेल शुरू कर लिए। हाँ जी, मुफ्ती मुबशर कल साहब तक बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। संजार ये नीचे यार ना चवले मारो इस तरह की भाई। हाँ नहीं, वो किसी को कोई ना छेड़े, अपनी बात जरूर करें। तो वो चवलें शवलें तो बजती रहती है ना, ये तो कौन सी नमी नहीं उस्ताद जी, एक वक्त में जिया भाई भी तो आपके साथ ही होते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुपों वगैरह पे आगे पीछे। ये भी निकल गए, गद्दार बन गए ये। नहीं बस इंज ही ਹੁੰਦਾ है ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर चलदियां तो रहंदियां ने, नहीं नहीं, लोग जो हमारी रग़बतें आपके साथ है मुफ्ती साहब, ऐसी बात नहीं है। शुरू से हमारी आपके साथ सपोर्ट रही और रहेगी। हम तो कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो है वो रद्द कादिर का काम कर रहे हैं। ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੜਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ। बहुत पहले 5-6 वही साल है। से ऊपर हो तो गए। बहरहाल ये हल्की पता क्या, फुल्की सी हुई है, हम हल्की हम फुल्की लोगों हुई है। की मामलात ऐसे हैं आपस में कि छोटी मोटी कहीं ना कुछ हुआ, लेकिन हम जी तो जी एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही कोई नहीं। तो लेकिन कुछ हमारे मुतशद्दिदीन ऐसे हैं, वो अपनी जिद के ऊपर वो कहते हैं नहीं, जिस तरह का मुतशद्दिद मैं हूं, तुम सारे क्यों नहीं होते, तुम भी कहो ना सबको काफर। ये है, वो काम खराब कर जाता है। वो एक बंदा जो है ना, आपकी वो पार्टी सबको का एक अपने बंदा नाम रिजवी है। हिसार में ले करके वो एक अलग ग्रोह बना ले। जी जी जी, आपका एक मकतब फिक्र से बिलोंग करता है बंदा, उसका नाम रिजवी है, ये भी जानते हैं, मोटू भी इसको जानता है। रिजवी ये यूके के अंदर होता है, बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का है, आपने देखा होगा। वो तो बोलता है कि यूके वाला कोई रिजवी मैं नहीं जानता। मोटू जानता है उसको ना, कासिम जानता है। तो वो बोलता है हम तो बरेलवी अपने अलावा किसी को काफिर मुसलमान मानते ही नहीं है। तो मैंने बोला ये बड़ी बड़ी आइटम आपको मिलेगी, यकीन मन, ऐसे ऐसे मुतशद्दिदीन जुबैरी मिलेंगे। उस्ताद जी माजरत के साथ ये भी, उस्ताद जी ये भी जिया भाई ने फनकारी की है इधर। वो ये नहीं कहता कि सारे ही, वो कहता है जिन पे फतवे मौजूद हैं और जो यानी वो शक वाले जुमरे में आते हैं। नहीं कासिम, गलत बात नहीं करो। इसको पता है आपको, एवं ना ड्रामे के। मैं आपको बताऊं, मैं एक बात बताऊं। अब वो दावत इस्लामी है ना, बड़ी जबरदस्त तंजीम है, बड़ा काम कर रही है, दीन का काम कर रही है भाई। सुन्नी बरेलवी, क्योंकि तशद्दुद उस बंदे के जब अंदर है, तो उसकी गुटी के अंदर है तशद्दुद। मैं एक जगह ना बैठ के सुन रहा था, वो मौलाना लियास कादरी इंज ते हो, मैं पढ़ ले उस टाइम ही पढ़ ले। मैं क्या कि की करना पिया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਾਸਮ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। यहाँ असल में यह है कि तशद्दुद भरा हुआ है ना, घुट घुट के पढ़ा हुआ है। वो तशद्दुद की नजर जो है ना, वो सबको हिसार में ले लेती। वो ऐसी है ना, हर एक ऊपर तनकीदी नजर डालता है। अच्छा केड़ा मुसलमान है ते किदी एक लत जन्नत च ते एक जन्नम च,
ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤ ਕੱਢੋ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਠੋਕੋ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਠੋਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ जन्नत ਚ क्यों एक ਲੱਤ ਇਹਦੀ? ऐसे लोग हैं, समझे कि नहीं? बात ये है कि थोड़ा सा इंज ना करो, इंज ना करो, धक्का ना करो यार। सोशल मीडिया बहुत एक नंगी तलवार है। ये जो आपने रवैये इख्तियार किए ये ठीक नहीं है मेरे भाई। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा, वो जो एक सुलह कुल्ली, अब ये सुलह कुल्ली मुझे बना देना, ये भी ये कहना। जो बंदा इस तरह की मुफाहमत की बात करे, ये सुलह कुल्ली है जी। चलो, सुलह कुल्ली की मतलब काफर। यार कमाल हो, नबूवत की इतने फील्ड है टिकट ना, ना दे आज। हाँ, खत्म नबूवत की जो शेख फील्ड है ना, उसके अंदर फिर वो असल में ये नहीं देखते कि आपके साथ बरेलवी आकर बैठ रहा है या देवबंदी आकर बैठ रहा है या अहलदीस आके बैठ रहा है या शिया आकर बैठ रहा है, देखो वो उसमें पता है क्या, तकलीफ देखो नहीं करते हैं। मैं रिजवी हूँ, कट्टर रिजवी हूँ। आला फाजले जी। बरेलवी ने जिस मौलवी पे जो फतवा लगाया है, 110% मुझे उसके ऊपर ईमान है, यकीन है। बिल्कुल वो एक अलग जगह है, वो एक अलग चीज है, मसला की बहस तो अलग बात है। हाँ, वो एक अलग चीज है। देवबंदियों, वाबियों, शियों या कोई भी, उनके मुतल्लक अल्लाह फाजले बरेलवी ने जो फरमा दिया है, मैं उसको मिन्नो मानता हूँ। लेकिन मेरे भाई, दौरे हाजिर कुछ जो है ना, कुछ और तकादा कर रहे, उसको समझिए आप। क्या आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी, या मतलब ले लें जवाद नकवी, या मतलब ये मसलकों की बात कर रहा हूँ जो मकातबे फिक्र के बड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अपने अपने मसलक वाले को आप खुद देख लीजिए। एहतिशाम इलाही ज़हीर, 4 बंदे पूरे हो गए हैं। सुन्नियों की तरफ से मुनीबुर रहमान, देवबंदियों की तरफ से तकी उस्मानी, शियों की तरफ से जवाद नकवी, और वाबियों की तरफ से हो गए वो क्या, एहतिशाम इलाही ज़हीर। बड़े ही हैं ये। तो क्या इनको आप लोग, अपने अपने मसलक के लोग, मुसलमान नहीं समझते? क्या उनको आलिम नहीं समझते? जब वो सब एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे, ये त्योहानू केड़ी तकलीफ है यार? ओ बंब मार दे ना पे तुहाडे ते, क्या वो सुन्नी शिया भी देवबंदी समझ के मार रहे हैं? इतनी इतनी बेवकूफ कौम मैंने अल्लाह दी कसम आज तक नहीं देखी। गजा दे उत्ते जदों बंबारी हो रही सी, ते सारे सुन्नी शिया भाबी देवबंदी सारे तड़फते सन पे, तलियो मच्छी, ओए 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 ओए, जुल्म मुसलमाना ते जुल्म हो गया। वही बंबारी जब ईरान के ऊपर हुई, ते ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤੜਪਦੇ ਸਨ ਪਏ ਨੇ, ਤਲਿਓ ਮੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਪਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਸਾਜੇ, ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਸਨ। बात यह है कि दुश्मन जब काफर कोई आपको मारता है ना, वो सुन्नी शिया भाभी देवबंदी नहीं देखता। तो आप लोग इतनी नॉनसेंस कौम हो, आपको हालात का कुछ देखना चाहिए कि हालात कहाँ पे पहुंचे हो गए हैं। तुम लोगों ने मसलकी मामले छेड़ रहे हो यार। मुसलमानों को यकजहती की जरूरत है, इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन, ऐसे ये वक्त की अहम जरूरत है, जज्बात से नहीं, इत्तेहाद से। मसलक आपका मुबारक, मैं बरेलवी हूं, मुझे मेरा मसलक मुबारक, जुबैरी देवबंदी है, इसको इसका मसलक मुबारक, और जो शिया है उसको उसका मसलक मुबारक, जो वाबी है उसको उसका मसलक मुबारक। लेकिन जब आमतुन नास की बात आएगी,
बड़े प्लेटफॉर्म की बात आएगी तो फिर सब ऐसे होंगे, नहीं होंगे। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान। लितर तो फिर है ही ने माशाल्लाह, वो पहने ही पहने, हर तरफ वो पहने। वो कुछ वजदे ने पे ते कुछ इंतजार करो, जे तुहाडियां हट दरमियां खत्म ना होईयां तो तू अपनी बारी का भी इंतजार करो, तैयार रहो सारे। फिर वेखो पेंदे किंज ने ते किधरों किधरों पेंदे ने। अमरीश पुरी साहब हैं मुफ्ती साहब। मैं थोड़ा सा चूंकि उल्मा की भी दिलजोई करनी चाहिए, ये मिर्जा गुलाम कादियानी मलून की मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। अगर आप मौका दें तो ऊपर कुछ आकर मिर्जे की लानत भी करे, मिमिक्री भी करे, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत से भाई ले लें अमरीश पुरी साहब को, ले लें ऊपर अगर आ सकते हैं तो। अमरीश पुरी उनकी आईडी का नाम है अमरीश पुरी। जी 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 जी। ओ ना छड़ की मैं इस मूड च नहीं है। देखे तो सही। मेरा मूड कुछ और है। नहीं नहीं, मैं उमरे तू आया वा मदीना शरीफ छुट्टी तू ते छुट्टियां गुजारन इत्थे आया वा ते मैनू चैन नाल छुट्टियां गुजारन दिओ। अल्लाहु अकबर। आ कादियानियां नू रगड़ा लाओ जिन्ना लगदा जे, नहीं कादियानी को रगड़ा लगाएंगे, ये कादियानी को रगड़ा लगाएंगे। वही ते कह रहे हैं वा कादियानी। मिर्जा जूनियर जेलमी दे मरज़इयां नू पाओ लम्मे, गल समझ भी अस्सलाम होती है वालेकुम मुफ्ती साहब। हाँ जी वालेकुम। मुफ्ती साहब हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो दलाइल के साथ कर लो जी कर लो, तुसी ना पीछे रह जाए, मेहरबानी होगा। कर लो मुफ्ती साहब मेरे साथ पास थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा आवाज लेट आएगा आपके पास। हाँ ठीक। अस्सलामुअलैकुम मौलाना मुफ्ती मुबशिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक बंदे नु तो पहले गल कर लैन दियो जी। हाफिज साहब। जी जी मुफ्ती साहब, ओ मेरे पास नेट का मसला है, इस वजह से आपके पास आवाज लेट पहुंच रहा है। सवाल जल्दी जल्दी कर लो माजरत के ना। साथ। तो मैं ये कह रहा था मुफ्ती साहब, मेरा सवाल जी सर, मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, आपने ये कहा हम खादम हुसैन रजवी साहब की जमात से हमारा ताल्लुक है, तो आपने कहा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, ये वक्त का तकाजा, ये सब एक हो जाए। हमने कहा बिल्कुल। ओहो ड्रॉप हो गया, सिग्नल का मसला था उनका मुफ्ती साहब। जी बहराम साहब कर लें जी आप। ये लाइन कटी है। नहीं मुफ्ती मुबशिर साहब, हम सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए आके बैठे, हम आपको सुन रहे हैं। आई लव यू, आई लव यू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुखबर साहब ही आ गए ना। कादियानियत है, मिर्जा गुलाम कादियानी मलून को लेकर सवाल कर सकते हैं, और जिस मुसलमान ने मिर्जे पैस लानत नहीं भेजी है वो भेज दे। और इंडोनेशिया वक्त के मुताबिक 4:21 पे मिर्जा गुलाम कादियानी पे लग दी लानत, सीधी करंट टाइम के मुताबिक 12:21 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर लानत बेशुमार। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम जी चौधरी साहब। जी मुफ्ती साहब, मैं इस टाइम ओमान दे विच बैठा ते 1:21 ते टोटल आल टू Z जिथे जिथे जेड़े जेड़े कोने दे उत्ते मरज़ई कादियानी छोटे वड्डे बैठे ने, सब ते लानत भेजना दा। ओ लानत है, ये कोई नवी गल सुनाओ यार, की करदे हो बच्चे वाले काम उस्ताद करदे जी हो। नवी गल डॉक्टर साहब है उस्ताद जी अपना मुफ्ती साहब, मेरे पास तो डॉक्टर की रसीद मौजूद है। डॉक्टर ने बोला तुम्हारे ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज ये है कि तुम जब तक 500 दफा मिर्जे पे लानत नहीं करोगे छोटे और बड़े पर, तब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। इन्होंने लगता है सीधी उंगली सीधी पार्टी शुरू करनी, पार्टी शुरू करनी। तो भाई नवी किताब आ गई है मेरी आदत दी, ते जिन्नू जिन्नू चाहिदी होए ते जल्दी जल्दी अपना WhatsApp दे उत्ते मैनू पोस्टल एड्रेस सेंड करो तो उन्हें किताब मिल जाएगी इंशाल्लाह। सुनो जी, किताब का नाम रखा है मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी। मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, एदा मतलब है जे कि मिर्जा कादियानी हीरा मंडी दे विच एदी मुरीदनियां दे कोठे सन। मैं
टाइटल पे से एतराज करता हूँ, ऑफ हीरा मंडी होना चाहिए था। हीरा आपने हीरा मंडी कर दिया। हाँ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ लो जी सुने जी सुने 2-4 हवाले यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा अपनी किताब में से बकाया चीज़ें और मौजूआत आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। खुलासा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हीरा मंडी के अंदर सबसे पहले कोठे की बुनियाद रखी थी। तारीख का मुताला करिए आपको पता चलेगा, और इस किताब का मुताला करिए आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला कंजर खाना मिर्जा कादियानी की मुरीदनी ने खोला था, मिर्जे ने खुलवाया था। आप लोगों को हैरत होगी कि मिर्जा कादियानी ने जब नबूवत का दावा किया था तो अपने हाथ के ऊपर बैअत करवाई थी, और वो जो बैअत कि उसके मुरीदों ने ऐलान करके कहा हो कि मिर्जा कादियानी सच्चा है, सच्चा नबी अल्लाह का। ये जो ऐलान था हीरा मंडी में हुआ था, लखी तवाइफ के कोठे के ऊपर हुआ था। तफसीलात आपको यहां मिले, ठीक है, तफसीलात यहाँ किताब के अंदर दिए गए हवाला जात। ये देखिए असल किताबों के स्कैन हमने कादियानी किताबों के लगाए। एक हवाला भी गलत साबित करने वाले कादियानी को या कोई मुसलमान को, कोई भी हो, किसी भी शख्स को एक हवाला गलत साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम मेरी तरफ से दिया जाए, यानी मुसन्निफ की तरफ से, राइटर की तरफ से, मुहर्रिर की तरफ से मिलेगा। एक हवाला सुनिएगा। किताब का नाम है तारीखे अहमदियत, सफा नंबर 454 है। ये कादियानियों की किताब है, ये असल स्कैन लगा है। और मेरी किताब का यानी इस किताब का सफा नंबर 42 है, सफा नंबर 42 ये आपको नजर आए, इसके ऊपर असल स्कैन लगाया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा। अच्छा जी, हजरत अकदस मसीह टट्टी मूतर ने जनवरी 1892 के तीसरे हफ्ते में लाहौर वालों पर इत्माम हुज्जत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, सफरे लाहौर इख्तियार फरमाया। हजूर लाहौर स्टेशन से क़यामगाह तक यके पर सवार होकर पहुंचे। इतने लफ्ज मैं बोलने लगा था, मैं बोलने लगा, तू बोल दे यके ते बह गया। ऐसी असल दे विच कासिम जिहड़ा है ना, मुफ्ती मुबशर शाह दा बातनी खलीफा है। ऐ समझ जांदा है कि मुफ्ती मुबशर कहंदा चाहंदा की है। अल्लाह दी कसम होई कहन लगा था जी। इनू मैं खलीफा एवें नहीं बनाया। अच्छा जी सुनो जी, तो यके पर मसीह टट्टी मूतर साहब सवार होके अपने क़यामगाह तक पहुंचे, लेकिन उन्हें थे लेकिन आ गए, लेकिन दे अगे काम खराब हुंदा है। लेकिन जब वो जगह काफी ना रही तो आप महबूब राइयों के मकान वाक़े हीरा मंडी में तशरीफ ले। मिर्जा कादियानी लाहौर वालों के ऊपर इत्माम हुज्जत कायम करने के लिए और मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उनको आई लव यू कहने के लिए लाहौर आता है और अपने एक मुरीद के घर क़याम करता है, और वहां पे उसको सुकून नहीं आता, कल भी सुकून नहीं मिलता उसको, क्योंकि उत्थे कंजरियां नहीं सन, उत्थे कंजरियां नहीं सन। इसने कहा कि मेरी एक मुरीदनी है कंजरी लखी तवाइफ, उसके कोठे पे जाते हैं, उधर बड़ा सुकून है, नाले असी बैतां भी करांगे, नाले मुजरा वेखांगे, कोई नोट मुरीदीन मेरे ते सुट्टणगे ते मैं लखी तवाइफ ते सुट्टांगा।
मुरीद भी खुश ते पीर भी खुश ते सुभान अल्लाह हैं समझ आई जे कि नहीं कता कलाम के लिए भाई राहिल अहमद कंफर्म जन्नती साहब ये मिर्जा गुलाम कादियानी के पैरोकार है ऊपर आकर मरो नीचे बैठकर कमेंट मजदूरी मत करो हाँ नहीं हूं उन्होंने किथे उन्हें मरना चक्की च बांह दे के मरेगा चक्की अपनी गया, रफ्तार आ गया, ना चल दी है भाई हाँ रहील साजी आ गया होते रहील रहील मर जा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ यार एक ही चक्कर है मिर्जा कादियानी जी, मुफ्ती ਤੁਹਾਡੀ साहब, वालदा दी कोठे दे मुफ्ती उत्ते साहब, लैन गया जामिया बन गए कोठे दे मुफ्ती साहब नहीं नहीं डोनेशन ਤੁਹਾਡੀ करना था ਵਾਲਦਾ ਦੇ तो ਕੋਠੇ जामिया ਤੇ ਕੀ बन ਲੈਣ गया ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਰਹੀਲ मुफ्ती साहब अरे, डोनेशन करना था हाँ। डोनेशन करना था बता तो तो सही वो ना। जामिया बन गया आपका। ये मुंशी मीरा बख्श के घर में मिर्जे को चैन नहीं आया था और वो तुम्हारी माँ का तो तुम्हारा मुजरा देखने के लिए हीरा मंडी क्या लेने बकवास गया नहीं था? करो जो बता दो। काम तुम यहाँ करने के लिए वो करो डोनेशन तुम्हारा मिर्जा खा गया था मुफ्ती साहब, किताबें लिखने का मुफ्ती साहब डोनेशन करना था नहीं दसना हो डोनेशन ज्यादा तो इन्हों मुफ्ती चीका साहब, मारन दे डोनेशन है राहिल डोनेशन का मिर्जा तुम्हारा 50 को 5 डोनेशन करना था तो आपको अकाउंट नंबर वगैरह दे दें। तुम्हारे डोनेशन को हम अपने जूते की अकाउंट नोक नंबर पर को दे रखते दें। हैं डोनेशन करना था जामिया हम बनना तुम्हारे था जूतों को तुम्हारी लुझनाओं को ना अपने जूते की नोक पिछली पर बरार रखते ते हैं ना जिया पिछली बरार ते आंदा सी पे चंदा मैं देना है ते ओ हाँ। चंदे दे उत्ते मैं क्या नहीं मैनू तू अपनी चंदा दे ते सुर्खी पाउडर ला के भेजी ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹੂੰ ਚੰਦੇ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ डोनेशन करना नहीं था तेने तो मेरी अकाउंट चंदा नंबर मंग लेनी है अकाउंट नंबर दे दे कोई। अच्छा भाई अगला मुफ्ती हवाला साहब कोई अकाउंट नंबर दे दें। तू इत्थे तसल्ली डोनेशन रखदा करना मुठ था रखदा देख ते मैं देना वा इधर माइक ਦਾ म्यूट करी कोई अकाउंट नंबर दे दें। डोनेशन करना सिर्फ था माइक म्यूट करके आपको मदरसा बन गया। ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਓਏ ਕਾਸਮ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ म्यूट करके ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਈ लो जी अगला हवाला जनाब इस हवाले से अगला हवाला सफा 43 के ऊपर और ये किताब है असहाबे अहमद जिल्द दोम और उसका सफा नंबर 100 उस पे क्या लिखा है सुनिए जी जनवरी 92 में हजरत अकदस लाहौर तशरीफ ले गए इब्तिदाअन चूने मंडी में मुंशी मीरा बख्श की कोठी पर कहा कोठी पर फरोकश हुए वहां आपने एक तकरीर की और हजरत हकीमुल उम्मत ने भी तकरीर की थी। इसके बाद महबूब राइयों के मकान वाके हीरा मंडी में तशरीफ ले गए। मीरा बख्श की कोठी से लेकर महबूब राइयों के कोठे तक का सफर ये जो हुआ है देख रहे हैं आप आगे जरा सुनिएगा। जब हीरा मंडी में महबूब राइयों के कोठे के ऊपर मिर्जा कादियानी चला गया है तो फरवरी में मौलवी अब्दुल हकीम साहब कल्ला नूरी ने हजरत अकदस का मुबाहसा हुआ। इस अरसा में हजरत नवाब साहब को लाहौर आने का मौका नहीं मिला अलबत्ता आप जलसा सालाना 92 में शरीक हुए और आगे वो फिर अपनी इन्होंने की। ठीक है जी तो हीरा मंडी के 2 हवाले हो गए 2 हवाले आगे सुनो। ये जनाब किताब का नाम है कादियानियों की किताब लाहौर तारीख अहमदियत लाहौर तारीख अहमदियत सफा 135 असल स्कैन ये लगा हुआ है यहां पे देख लीजिएगा। हजरत मसीह मऊद 1892 में लाहौर तशरीफ लाए और महबूब राइयों के मकान वाके हीरा मंडी में क़याम फरमाया। आप जियारत के लिए पहुंचे। आए जियारत हीरा मंडी में जियारत किस चीज की होती है भाई? कंजरियों की होती है और किसकी होती है? तो बंदरी की होती है हजरत नच्छो बंदरी।
भाई कंजरियों की हुई ना, वो तमाशबीन जाके उनको ही देखने के लिए जाते हैं और क्या करते हैं, तो आप जियारत के लिए पहुंचे हैं, समझ रहे आप। एक नंबर दा ठरकी सी मिर्जा का, ओए ओए यकीन मत, तमाशबीन बड़े परले दर्जे। इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी आपको हवाले और बातें मिलेंगी, यकीन जानो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। कादियानी टाइट जी, चढ़े ये थे, नीचे फिर वो दौड़ गया रही। अदनान साहब आए हैं, ये जो है अदनान साहब बोल रहे थे, ये जो है गलत बोल रहे हैं आप, तो ये इनको ऊपर लिया, हाँ क्या कहते हैं अदनान अभी साहब देखते हैं। ये सच बताएंगे भाई, ये सच बताएंगे। हेलो जी अदनान साहब। जी सर, जी सर बोले हैं। बोले चलो बोलना तो तुमको बोलते है, हैं। अदनान साहब नीचे बैठकर बोल रहे थे, गलत क्लेम कर रहे हो तो नीचे बैठकर कमेंट में बोलते कि हैं, मुफ्ती साहब गलत बोल रहे हैं, अब ऊपर आकर तो मुफ्ती साहब से बोल बोलते रहे हैं। वो बोल रहे हैं, तुम मेरी बोलो बात भाई। सुने, बोल। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं मैसेज किसी और को कर रहा था तो गलती से आपको चला गया, सॉरी। हाँ जी अच्छा चलो जी, ठीक, मैं बोलने लगा। चलो चलो चलो। किताब का नाम ये है पहले की लगा। असहाबे अहमद और जिल्द अव्वल है और सफा है 86, सफा 86 ये वाला। इसमें बड़ी सी हेडिंग दी हुई है कबूले अहमदियत, नजर आ रही है ना, कबूले अहमदियत। सुने जनाब, मुबासा दिल्ली के बाद हजरत मसीह टट्टी मुतर ने लाहौर में कई रोज तक क्याम रखा। पहले दिन वो मीरा बख्श के कोठी पर गया था, लेकिन अगले कई दिन लंबा जो क्याम था ना, वो कोठे पर रहा हीरा मंडी के, और वो कोठा था लखी तोआइफ का। ठीक है जी। अच्छा जी, कई रोज तक क्याम रखा। इन अयाम में मुखालिफीन का जोर था। सुनते जाइएगा। बेहुदा लोग गली कूचों में गंदा दहानी करते और झूठे लग़व और बेहुदा किस्से हजरत अकदस के खिलाफ मशहूर किया करते थे। अभी ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, अभी मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। नबूवत का ऐलान तो उसने किया है 1900 के अंदर जाके, और ये 1892 की बात है, यानी 8 साल पहले। मिर्ज़ा कादियानी को लोग जानी कहते थे कि ये जानी है, मिर्ज़े को लोग शराबी कहते थे, मिर्ज़े को लोग रंडीबाज कहते थे 8 साल पहले। और कौन कह रहा है, सुनिए, तवज्जो से सुनिए। हीरा मंडी के लोग, हीरा मंडी के लोग। यहां से एक नतीजा मैंने निकाला है, वो यहां पे पढ़िएगा। हीरा मंडी के जो कंजर हैं वो मुसलमान हैं। अगरचे वो बेहुदा काम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं जी हम मुसलमान, हम मानते हैं, चलो जी आप मुसलमान। जो वो गलत काम करते हैं वो गलत है, वो सारी दुनिया कहती है गलत है भाई, ज़नाकारी या जो भी वो दलाली होती है गलत है यार। कुछ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करो तुम, क्या लेकिन तालीम पेश कर रहे हो, तालीम पेश कर रहे हो क्या? लेकिन क्या गाली बंदे दा पुत्र बनी होए, बंदे दा पुत्र बनी, मैं लित्तर बड़े मारना हूं, बंदे दा पुत्र बनी, सिर्फ अपने मिर्दे काने तक रहो। नहीं, तुम्हारे नबी ने गाली नबी तक ना सिखाई जाया तुम जी, लोगों को मैं लित्तर बड़े मारांगे। हैं? तुम्हारे बंदे नबी दा ने पुत्र गाली बनी, मोले दे ओही ना, बंदे दा पुत्र बनी, एनो कट सोए कुट खाए गई। तुम्हारे गया नबी साजी गया के चल आउट हो जा। मैं तो कहा मिर्जे दे मनने वाला, ये मिर्जे दे मनने वाला मैं मुर्गा तो है ना बला सर जी। मैं बला करना से पीछे गया से ठीक होगा सर जी, ठीक होगा। बंदर। अच्छा भाई सुनो भाई, अच्छा यार वाकया सुन लो पहले, अभी मैंने सुनाना है इबारत अभी बाकी है। मुसलमान है, अगरचे वो गलत काम करते हैं, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत उनका भी बड़ा मजबूत। हीरा मंडी के कंजरों का ये अकीदा था
کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جب مرزے قادیانی کہ یہ جو دعوی مہدیت اور مسیحیت یہ پہلے کے شروع ہو چکے تھے، باقاعدہ اس نے جو دعویٰ تھا وہ تو بعد میں کیا تھا، لیکن اس قسم کے دعویٰ جات کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ ابھی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو اس کے دعوی مسیحیت یا دعوی مجددیت اس کے آئے تھے، اس کے اوپر ان لوگوں نے تسلیم نہ کیا کہ یہ بندہ تو زانی اور شرابی آدمی ہے اور اس کوٹھے کے اوپر آ کے رہتا ہے، ہیرا منڈی میں ہمارے پاس رہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی احتجاج کیا۔ یہ کتاب تمہاری بول کے بتا رہی ہے، لاہور اصحاب احمد جلد اول اور صفحہ 87 ابھی میں پڑھ رہا ہوں، سنیے جی، آگے سنیے۔ اچھا جی، لوگ جھوٹے لغو اور بےہودہ قصے حضرت اقدس کے خلاف مشہور کیا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کا ہجوم حضور کے مکان کے گرد رہتا تھا، یعنی وہ لکھی طوائف کے کوٹھے کے قریب یہ سارے جو ہے نا وہ جو مرزے کو کی مخالفین تھے وہ جمع رہتے تھے۔ کتاب کہہ رہی ہے، تمہاری کتاب، آگے سن۔ اور اندیشہ تھا کہ بدکماش لوگ، یہ بدکماش کون؟ وہ برے کام کرنے والے، مطلب یہ کہ وہ ہیرا منڈی میں برے کام ہی ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام تو نہیں ہوتا۔ وہ بدکماش لوگ مکان میں گھس کر حملہ نہ کر دیں، یعنی لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر چڑھ کے وہ مرزے قادیانی کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے۔ 8 سال پہلے نبوت کا دعویٰ 1900 کے اندر ہوا ہے، یا تھوڑا سا اختلاف ہے ہمارے جو مسلم مورخین ہیں کہ 1900 میں کیا تھا یا 1901 میں کیا تھا، صرف 1 سال کا فرق، تو کر لیتے ہیں چلو جی 1900 میں کیا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ، تو یہ تو 1892 کی بات ہے، 8 سال پہلے۔ آگے سنیں جی، یعنی اس کے دعویٰ ابھی مسیحیت اور مجددیت کے اوپر لوگ اس کو مارنے کے اوپر آگے تھے، تو دعوی نبوت کے بعد اس کے لوگوں نے اشر کیا ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ اچھا جی، لوگ مکان میں گھس کر حملہ نہ کر دیں، بیعت کرنے والوں کو سنے ذرا توجہ سے، بیعت کرنے والوں کو مخالفین تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مرزے قادیانی کی بیعت لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر ہوا کرتی تھی، ہیرا منڈی میں۔ یہ جو تھے نا مرزے قادیانی کے دور کے قادیانی، وہ لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر انہوں نے بیعت کی تھی، ہیرا منڈی میں بیعت کی تھی مرزے قادیانی کی۔ یہ جو لوری جماعت ہے یہ ساری ٹوٹلی ان کے جو بڑے تھے لوری جماعت کے، لاہور والے قادیانی، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے لکھی طوائف کے کوٹھے کے اوپر بیعت کی تھی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کے اندر وہ محمد علی لوری اور یہ سارے شامل ہیں۔ آگے سنیے جی، مخالفین تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے بیعت کا کئی دفعہ اظہار بھی نہیں کیا جاتا تھا، بیعت کا کئی دفعہ اظہار بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ مرزا ایوب بیگ صاحب اور آپ کے حقیقی بھائی مرزا یعقوب بیگ صاحب نے ایک دوسرے سے خفیہ بیعت کی، اور یہ وہی ہے کہ جب بہشتی مقبرہ مرزے نے دکان کھولی تھی نا، تو اس کی لاش کو کسی اور جگہ دفنایا گیا تھا، لاش کو کسی اور جگہ دفنایا گیا تھا۔ مرزا قادیانی نے جب
बहिश्ती मकबरे की दुकान खोली तो कहा कि इस यकूब बेग की जो हड्डियों को निकालो वहां से और ला के बहिश्ती मकबरे में दफन करो। हाँ, ये वो ही है। हाँ भाई, आया है कोई कादियानी? जी दस ये बज मेहदी गए हो। साहब बैठे हुए हैं। मेहदी साहब अपना माइक ओपन करें। आ जाओ भैया। मेहदी साहब माइक ओपन करें जी अपना। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। गलबात करनी है। मुबशिर भाई जारी रहो, मैं तानु सुनना आया। बिस्मिल्लाह। चलो मैं वो बंदे बड़े थले हो लेना साहब जी। जी जी, बुला लो, किसी ने बुलाना जी बुला लो। मैं तो नादा मुरीद हाँ, मैं तो सुनना जी आया। ठीक है जी। हाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हाक साहब जी वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, पहले तो मैं दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिस तरह से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से ब्रॉडकास्ट को विज़िट कर रहा था मुख्तलिफ को, कि मुझे कोई नगीना बंदा मिले जो इस काम के पीछे लगा हुआ हो और जिसकी रिसर्च हो। मैं सर काफ़ी दिनों से देख रहा था कि अहमदियों के जो है ना बहुत सारी ब्रॉडकास्ट चल रही हैं, और हमारे नौजवान जो तालिब इल्म हजरात हैं ना, वो वहाँ पे जाते हैं तो बड़े अजीबो गरीब उनसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और बच्चे हैं तालीम से यार काफ़ी क्या क्यों दूर हैं, शर्मिंदा करना है पे यार। तो वो ना मतलब उनको सवालात उनकी नहीं समझ आती, जैसे वो उनको ना फंसाते हैं। जैसा कि पहले हमें सुनने में मिला कि ये कादियानी जमात है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानते हैं, और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये मानते हैं कि वो आखिरी नबी हैं, मतलब ना अपने आप को सबॉर्डिनेट मानते हैं ये। अच्छा, फिर इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया कि वो जो है ना वो मसीह मऊद हैं। हम भी यकीन रखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं, लेकिन ये जो ग़ुलाम अहमद साहब हैं ये जी अपना मसीह मऊद हैं, ठीक है। यानी इस तरह के, तो मैं पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब ज़रा वजाहत फरमाइएगा कि क्या ये अलग अलग हैं? चूँकि मुझे इनके हवाले से कोई लिटरेचर भी चाहिए, अगर हो तो काइंडली मुझे वो फॉरवर्ड भी किया जाए ताकि मैं खुद भी इसका मुतालिया करूँ, ठीक है। तो ये जो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है इस चीज़ को कि कादियानी और अहमदी, क्या ये दो जमातें हैं या क्या है, ये ज़रा इसके बारे में वजाहत फरमाइएगा। हाँ, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको कादियानियत का, मरज़इयत का, मिर्ज़े कादियानी का कुछ भी पता नहीं है, आपको पता ही कख नहीं है। इसके लिए आप ये करिए कि आप यार ना यार करमाल, या क्यों शर्मिंदा करना है यार करमाल। अच्छा जी, शुक्रिया ज़िया। अच्छा जी, आप आजज की सिर्फ 2 किताबें पढ़ लें, सिर्फ 2 किताबें, ज्यादा नहीं। एक ये किताब आपने पढ़नी है मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, और आजज की ये वाली किताब मिर्जा कादियानी चूड़ा। ये 2 किताबें पढ़ लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मिर्जा कादियानी कौन था, इसकी करतूतें क्या थीं, इसके दावाजात क्या थे, कादियानियत क्या है, कादियानी कौन थे, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मिर्जे कादियानी के हाथ के ऊपर बैत की, किस वजह से की, वो सब कुछ इन 2 किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और हमारी किताबें यानी मेरी किताबें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी किताबें, मैं चूंकि जमा का सीगा बोलता हूँ कि वो बंदा तकब्बुर और बड़ाई से जरा बच जाता है, तो इसलिए मैं हमारी का लफ्ज बोलता हूँ। तो इस मेरी किताबों के अंदर या हमारी किताबों के अंदर आपको एक खासा मिलेगा, वो ये कि जो भी बात हमने की है कादियानी किताब के असल स्कैन अंदर लगाए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, भी अवेलेबल है, हार्ड कापियां भी अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करिएगा, आपको किताबें मैं पोस्टल एड्रेस भेज दीजिएगा। मेरी किताबें फ्री ऑफ दी कास्ट होती हैं, हम पैसे नहीं लेते, इनको सेल नहीं करते, लेकिन डाक खर्चा आप देंगे, ठीक है, वो जितना भी आ जाए, वो 100 रुपया है, 200 है, जितना भी है, समझ आई कि नहीं।
अगर आप बैरून ममालक तो फिर PDF हाजिर है, PDF से इस्तेफादा करिए, समझे कि नहीं? मैं कता कलामी की मादर थोड़ा मुफ्ती सा साहब मैं मैं इंशाल्लाह आपको इनबॉक्स में सेंड करूंगा। थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपने जी, जी। चूंकि सवाल किया है ना, थोड़ा सा बता जी देता हूं। हवाला जात फिर कह रहा हूं कि इन किताबों के अंदर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बता देता हूं। मिर्जा कादियानी असल में चूड़ा था। चूड़ा आपको पता है किसको कहते हैं, पता है आपको? जी जी, ये जो अक्सर हमारे यहाँ इधर गंद वगैरह साफ करते हैं या मुर्दार वगैरह का गोश्त वगैरह उठाते हैं या कोई इस तरह के लोग जो है। वेल वेल समझ गया। वेल लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर जिनको चूड़ा कहते हैं ना, ये वो चूड़े नहीं, ये बकायदा एक कास्ट थी, जिस जात नहीं होती, जैसे भट्ट साहब एक जात है, मुगल साहब, या मतलब आपकी जात क्या है? आपकी जात क्या है? कास्ट, कास्ट क्या है, को पता है? नहीं बताना चाहते, चलो कोई मसला नहीं। तो ये जो जाति होती हैं, तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जब पाको हिंद एक होता था, यानी पाकिस्तान और इंडिया एक था, तो वहां पर एक कास्ट थी, जात पाई जाती थी, जिसको चूड़ा कहते थे या बाल्मीकि भी कहते थे। ठीक है, दो नाम, जी जी, बाल्मीकि भी कहते थे और चूड़ा भी कहते थे। ठीक है, ये बाल्मीकि और चूड़े ये कौन थे, इसका पूरा तारुफ और हिस्ट्री और तारीख की किताबों के असल स्कैन यहां पे मैंने लगा के वो चीज अपनी समझाई। मैं खुलासा आपको बताने लगा। जी माशाल्लाह। जी जी, ये एक हिंदू था, वो हिंदू मुस्लिम अकायद से थोड़ा सा मुतासर हो गया। जब वो मुस्लिम अकायद से थोड़ा सा मुतासर हुआ तो उसने एक नया मजहब, इन दो मजाहब में से एक तीसरा मजहब निकाला, वो था बाल्मीकि मजहब। ठीक है, उसने ये किया कि कुछ उसके अकायद मुसलमानों वाले थे और कुछ उसके अकायद जो थे वो हिंदुओं के, वो बुत परस्तों के अकायद थे। ठीक है जी, और वो करते क्या थे? करते ये थे कि जनाब यहां एक अल्लाह आपका भला करे, किताब अगर मुझे सरे दस मिल जाए तो मैं आपको वो किताब ही दिखाऊं। मैं असल में ना गया हुआ था जी, मुल्क से बाहर गया था, तो पीछे से सफाइयां हुई हैं, तो बल्कि सफाई ही हो गई हैं। तो मुझे अपनी ही किताबें अभी ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चीजें इधर उधर हो गई हैं। तो इसके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। किताब एक लिखी गई है हलाल खोर, और मौलाना निजामी की ये किताब है, और ये चूड़ों की हिस्ट्री के ऊपर समझ ले के सबसे बड़ी किताब है। उसके चंद हवाले मैंने अपनी इस किताब के अंदर भी लगाए। ठीक है, उन्होंने ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं उस किताब की बातें बता रहा हूं, अल्लामा निजामी की किताब। तो ये जो चूड़े थे, इनके कुछ अकायद मुसलमानों वाले, कुछ अकायद इनके थे जनाब हिंदुओं वाले। तो इन्होंने एक तीसरे मजहब की बुनियाद रखी। ये मुर्दार को खाते थे, ये गंदगी के अंदर रहते थे, गंदगी उठाते थे। जमादार, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ऐसा काम करने वाले को जमादार भी कहते हैं। वो जो दाबड़ा सिर के ऊपर रखा होता है, हाथ में झाड़ू पकड़ा होता है, लटरीन को ऐसे साफ करके उसके अंदर गंद डाल के और दाबड़ा सर पे रख के तो वो गलाजत किसी और जगह फेंकने जाता है। तो पहले बचपन में तो हम देखते थे ऐसे जमादार होते थे, लेकिन अब
जमाना बदल गया तो अब शायद होते हैं कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं। तो ये काम असल में वो करते थे, बुतों की भी बीच में पूजा कर लेते थे, कृष्ण कन्हैया को भी मानते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते थे। तो मतलब कुछ चीजें उनकी हिंदुआना थी, कुछ मुसलमानों वाली चीजें शामिल थी, लेकिन वो ना ही पूरे तरीके के मुसलमान थे और ना ही पूरे तरीके के हिंदू थे। जनाबे मन ये सिलसिला चलता 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 मिर्जा कादियानी का जो कजन था, चचाजाद भाई, जो उम्र के अंदर मिर्जा कादियानी से थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, यानी उसका नाम था इमाम दीन। इमाम दीन इतना सा था और मिर्जा कादियानी इतना था, यानी छोटा था, समझ रहे कि नहीं? तो वो जो इमाम दीन था वो था चूड़ों का लीडर, चूड़ों का लीडर था, क्योंकि चूड़ों की नस्ल में थे ये चलते आ रहे थे ना। तो वो सारे चूड़ों ने मिलके इमाम दीन को, यानी मिर्जे कादियानी के चचाजाद भाई को अपना लीडर बना लिया। हुआ ये कि इधर से मिर्जा कादियानी का दिल भी ललचाया, और जब दिल ललचाया तो इसने चाहा कि मैं क्यों ना लीडर बनूं, मैं लीडर क्यों ना बनूं, मेरा हक ज्यादा है, चूड़ों का मुझे लीडर बनना चाहिए। लो जी, मिर्जा कादियानी ने एक चूड़ा था, उसका नाम अब्दुल बाल्मिक था, उसका नाम असली नाम था अब्दुल बाल्मिक। तो उस अब्दुल बाल्मिक को अपने हाथ के ऊपर बैत की करवाई, यानी की या करवाई। तो उस चूड़े को अपना मुरीद बना के तो उसका नाम रख दिया नूर मोहम्मद। क्या नाम रखा? नूर मोहम्मद। ये मिर्जे कादियानी का सबसे पहला मुरीद था। हवाले मैं कह रहा हूं इस किताब के अंदर आपको मिलेंगे। जो बातें मैं कर रहा हूं, फिर मैं कहता हूं, एक बात भी गलत कोई साबित कर दे, एक हवाला भी गलत साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम देंगे हम। हाँ, ये हकायक है कादियानियत की। तो उस नूर मोहम्मद चूड़े ने मजीद और चूड़ों को मिर्जा कादियानी का मुरीद बनाया। ये कादियानी किताबें कहती हैं मिर्जा कादियानी का सबसे पहला मुरीद चूड़ा था अब्दुल बाल्मिक, जिसका बाद में मिर्जे ने नाम तब्दील करके नूर मोहम्मद रखा था। ठीक है, ये लें, ये किताब तो मेरे सामने पड़ी है, ज्यादा दूर नहीं जाना। मिर्जे कादियानी के बेटे की लिखी हुई किताब का नाम है खिलाफत ला मिनहाज नबुवा। ये देखें, बशीरुद्दीन महमूद, मिर्जे कादियानी का बेटा, वो लिखता है, और इसकी जिल्द नंबर 2 है, जिल्द 2, और इसका सफा नंबर जनाब 262 और 263। और ये हवाला मैंने इसके अंदर भी लगाया, सेम यही इधर भी लगा हुआ। और ये जितनी बात मैंने आपको सुनाई है, ये इन 2 सफों को मैंने पढ़ के सुनाया। ठीक है जी, देख लीजिएगा। तो मिर्जा कादियानी असल में चूड़ा था। ये सवाल किसने किया था मुझसे, जिसका जवाब मैं दे रहा हूं? वो भाई चले गए। ये खाक साहब बैठे हुए हैं, बैक पे हैं खाक साहब। खाक साहब जो भी। तो खाक साहब, आपका ये सवाल था कि मिर्जा कादियानी कौन था। तो मिर्जा कादियानी मेरे भाई चूड़ा था और चूड़ों का मुरीद था। ये जितने भी कादियानी, जितने भी आज वर्ल्ड के अंदर जितने कादियानी आपको नजर आते हैं, इनके बाप दादा या जो भी जहां से ये शुरू हुए, वो असल में चूड़े थे। ये चूड़ों की औलाद है। इन्होंने बाद में अपनी जात तब्दील करके अपने आप को मुगल कहलवाना शुरू किया। जी हमें मुगल कहा करो, मिर्जा कहा करो। इसके अंदर लिखा हुआ है।
मिर्जे कादियानी का बेटा इस चीज को तस्लीम करता है। हमारी जो असल है वो है चूड़ा। पहले हम चूड़े थे, चूड़ों से हम मिर्जा बने, और मरजई हमें लोग कहते हैं, तो ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। कलामी की माजरत, मैं गुजारिश ये करनी थी कि ये जो आजकल जो मॉडर्न है ये उससे डिनाई करते हैं कि हम मतलब जो है ना ये कौन कादियानी नहीं, हमें अहमदी कहें कि ये अहमदी कहलवाते हैं। मुझे नहीं पता लगा कौन बोलता है जी। मैं यार साहब आप फिर से आए ऊपर, आप ना फिर से ऊपर आए, आपका ना मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि बैग पे थे ना गए हुए, फिर से कॉल लगा, मैं लेता हूँ आपको। मेरे भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा, किताबें मिल जाएंगी। जी जी। मैं हजरत मैं ये कहना चाह रहा था कि अब ये कहते हैं ना कि भाई हमें कादियानी ना कहें, हमें अहमदी कह के बुलाएं, तो इस हवाले से कह रहा था कि क्या ये कोई दो ग्रुप है या मतलब क्या? वो तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई ना, ये सब अच्छा, यानी कि सही है, यानी कि बोतल अलग है, शराब एक ही है। वो एक ही है असल में। इनके इसके ऊपर भी मेरी किताब है, पूरी अलग से किताब है। जी जी। इनके वडेरे अपने आप को कादियानी और मरज़ई कहलवाते थे, और बड़ा, बल्कि इसमें लिखा हुआ है यार, ज्यादा दूर क्या जाना, ले इसी में ये देखिए सफा नंबर 263, ये देखिए, आप मिर्जा साहब के मुखालफत करके मिर्जा से चूड़े बन गए, और हम मिर्जा साहब को मान कर चूड़ों से मिर्जा हो गए, चूड़ों से मिर्जा हो गए, मिर्जा साहब को मान के। जी जी, मैं चूड़ों समझ रहा से हूं। क्या बन गए? मिर्जा बन गए। आगे सुने आगे सुनो। लोग हमें मरज़ई कहते हैं, लोग हमें मरज़ई कहते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ, ये देख। इनके वडेरे तो फख्र महसूस करते थे कि हमें मरज़ई कहा जाए। वो कहते हैं ये फायदे की बात है कि लोग हमें मरज़ई कहते हैं, लेकिन असल में वो चूड़े थे ना, वो मिर्जे नहीं थे, वो चूड़े थे। चूड़ों को ये बात पता है कि मरज़ई तो बड़ी एक फख्र की बात है। ठीक है, बात कोई समझ आई है कि नहीं आई मेरे भाई? खैरन कसीरा, बड़ी अच्छी आई। तो मैं इंशाल्लाह इनबॉक्स में आपको मैसेज करूंगा, तो आप काइंडली मुझे पीडीएफ में शेयर कीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बाकी मैं राब्ता अभी रहेगा। WhatsApp पे इस हवाले नजर से। कर रहा हूँ। हाँ बड़ी जी। अजीब सी बात है वैसे, आपको बताऊं एक जी जी ख्वाक भाई, कोई समझ नहीं जी आ रही जी। ना आपका। 37 बंदे बैठे हैं, किसी एक बंदे को भी किताबों की जरूरत को नहीं है। सर इस तरह से है ना, एक मैसेज नहीं अभी तक आया। मेरा दिन ये था कि इन 36 में से कम 30 तो मैसेज मुझे आ गए होंगे कि मुफ्ती साहब जल्दी जल्दी किताबां सेंड करें यार। नहीं बिल्कुल ऐसे सही आप फरमा बंदा रहे ने, हैं। आप जी जी देखिए कौम का ज़ौक़ का अंदाजा करिए। जी जी कि जी ये जी। कौम चस्के लेने वाली कौम है। इनको हाँ जी इनकी जाए बाढ़ में कादियानी कौन है, मरज़ई कौन है, उसका क्या हाँ जी। अकीदा, उसका नहीं कोई। हाँ जी। इनको सिर्फ ये कि आपस में लड़ना है, गाली गलोच करनी है, तेरी बहन दी, तेरी मां दी, ओ काफर, बस ये। इनको हकायक नहीं जानने इन्होंने, बिल्कुल ऐसे इनका ही है। ज़ौक़ भी नहीं है। ये बेज़ौकी कौम है। ये एक बात कड़वी सी की है मैंने, नाराज नहीं आई। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। असल में वो अल्लामा साहब का एक शेर है, वो फरमाते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, भाई कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बात सिर्फ ये थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं थम सा गया आपकी ब्रॉडकास्ट पे आके। ठीक है, कि मुझे जो है ना जिसकी तलाश थी मुझे वो चीज़ मिल गई। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारा ना इन चीज़ों को देख रहा था कि इन लोगों का फितना दिन ब दिन, इनकी बहुत सारी ब्रॉडकास्ट चल रही होती हैं, तो मैं चाह रहा था कि मेरे पास रेफरेंसेस आ जाएं ऑथेंटिक किस्म के। आपकी बात काट के मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक कादियानी यूसुफ बंदर साहब कह रहे हैं कि वफात मसीह और इजराए नबूवत दो बड़े मसले हैं, अगर वो कुरान और हदीस से हल हो जाएं तो बाकी हो सकते हैं। तो ये यूसुफ बंदर साहब गुजारिश ये है कि ये दो मसले बड़े नहीं हैं। दो बड़े मसले ये हैं कि मिर्जा कादियानी
अपने आप को कहता था कि मैं कादियान की गलियों के कुत्तों में से सबसे बड़ा कुत्ता हूं। ये पहला मसला ये है कि वो तो अपने आप को कहता था मैं कुत्ता हूं, तो तुम लोग उसको इंसान क्यों कहते हो? पहला मसला ये है। और दूसरा मसला ये है कि मिर्जा कादियानी शराब को हलाल कहता था और शराब को पीता था, जना को हलाल कहता था और जनाकारी करता था। तो उस जानी और शराबी को, बल्कि एक और चलते चलते मुझे ज़हन में एकदम बात आ गई है कि उसने अपने घर के अंदर कुछ कंजरियां रखी हुई थी मिर्जे कादियानी ने, और इसका जिक्र मैंने इसी मिर्जा चूड़ा के अंदर की है। सफा नंबर 113 से लेके 144 तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं निकाल के दिखा भी देता हूं। एक सौ 113 मिर्जा कादियानी ठरकी, ठीक है। और हवाला भी दे दो, हवाला ये हाँ, ये जनाब सीरतुल मेहदी हिस्सा सोम सफा 631 हाईलाइट इबारत। खुलासा मैं आपको बता देता हूं। जनाबे मन, मिर्जा गुलाम कादियानी जो था ना, वो औरतों का बहुत शौकीन था। नई नवेली लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां जो है ना, वो अपने पास रखता था। और ये मेरा पूरा रिसाला आपने पढ़ना है, बड़े हवाले आपको मिले, ठीक है जी। मैं खुलासा बताने लगू सारा। मिर्जा कादियानी दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र करता था, तो उसने लोटा उठाने के लिए एक लड़की रखी हुई थी। मिर्जा कादियानी लड़कियों से दबवाता था टांगे, तो जो लड़की भी आती थी पहले उसको टांगे दबाने के लिए बिठाता था, मेरी टांगे दबा। मिर्जा कादियानी को मसाज करवाने की बड़ी आदत थी, तो इसकी लड़कियां मसाज किया करती थी। मिर्जा कादियानी को सर सतवाने की बड़ी आदत थी। गैर महरम औरतें, लड़कियां, ये मौजूदा कादियानियों की कोई दादी थी तो कोई नानी थी, तो वो मिर्जा कादियानी की खिदमतें करती थी। मिर्जा कादियानी ने अपने कमरे खास के चौकीदारी के लिए, पहरेदारी के लिए मुख्तलिफ लड़कियों को रखा हुआ था। अब हुआ ये कि एक इसका मुरीद था, तो उसने करनी थी शादी। उसने आके मिर्जे कादियानी को बताया कि हजूर कोई रिश्ता ते मेरे आस्ते लब दियो, हजूर मेरा ब्याह ते करा दियो। हजूर तो फिर हजूर से ना, हजूर ने क्या तो इथे रोक, मैं आना वा। हजूर कमरे में गए और जाके 2 लड़कियों को बुला लाए, और 2 लड़कियों को बुला ला के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। जब बाहर खड़ा कर दिया तो वो जो ब्याह करवाने वाला लड़का था, हजरत साहब हजूर फरमाने लगे कि ये 2 लड़कियां आई हैं, तो दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, इनको चेक कर लो, जरा देख लो, तुम में से जो
तुम्हें जो पसंद आए उसके साथ तुम्हारा ब्याह मैं कर दूंगा। वो जो था मुरीद हजूर का मुरीद, हजूर की मुरीदनियों को उसने ऐसे झांक के देखा तो कहने लगा कि हजूर ए जड़ी पतले मुंह वाली है ना मैनू बड़ी पसंद है, ए पतली दुबली जी ये बड़ी मैनू पसंद है। तो हजूर ने फरमाया नहीं, मेरे ख्याल में जो गोल मुंह वाली है ना वो सही है। जो गोल मुंह वाली है ना वो थोड़ी सी मोटी ताजी है, उसके अंदर थोड़ा सा गोश्त ज्यादा होता है, तो दूध पीने का मजा भी सही आता है। वो जब पिलाएगी, हाँ जी जब पिलाएगी गिलास वाला दुध यार, तुसी होर ना कोई समझिया जे, गलत काम बिल्कुल नहीं। ਇਹ ਸਭ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਮਰ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। नहीं नहीं उस्ताद जी, वो जो गोल मुंह वाली भैंस का दूध सियान ने ज्यादा मेरी मजा आएगा। गलती दूर कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੈਂਸ का दूध भाई, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਭੈਂਸ का दूध। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਓਏ ਮੋਟੂ? जी जी हाँ तो उस्ताद जी होगी यही गल है, यही ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੀ? अच्छा जी, अच्छा हजूर ने फरमाया कि नहीं, जो गोल मुंह वाली है ना मेरे ख्याल में वो बेहतर है, क्योंकि जब पतले मुंह वाली है वो जब बीमार हो जाएगी ते उन्हें ते चूसी कुत्ती बन तो जब गोल मुंह वाली जो होती है जिसमें गोश्त थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो अगर बीमार हो भी जाए तो पतली होके बस इन्हीं को रह जाएगी। समझ आई कि नहीं? इन्ना वड्डा तमाशबीन सी अल्लाह दी कसम है। तुसी ये जेड़ी किताब है ना मेरी है मिर्जा चूड़ा पढ़ के तुहाडा दिल करना कि असी अगर हुंदे ना मिर्जे दे दौर च ते असी ला लितर लेना सी ते मिर्जे नूं पा लम्मे लेना सी। ऐसी करतूत मिर्जे दी यार, तुहानूं मैं की दस्सां यार। ए चिन्नू, हाँ जी वालेकुम सलाम यार, जी अल्लाह शुक्र है। जी सर जी, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि ये जो मुझे तो खैर इसका नाम भी नहीं पता जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड था इस्लाम के अंदर, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। नहीं बिल्कुल एक्सेप्ट गलत करता गल ना करो, गलत गल ना करो। इस्लाम नहीं, के अंदर नहीं। फ्रॉड केड़ा? इस्लाम दे अंदर नहीं गलत मतलब गल एक क्यों फिरका करें? एक नहीं फिरका करनी एक गलत फिरका बात है। इस्लाम के अंदर, इस्लाम से उसका क्या तलक वास्ता है? चले, अब मैंने बात मान ली, नहीं इन्होंने आपने एक ये अपना गलत बात की है। इस्लाम के चले अंदर अपना नया मजहब निकाल लिया, ये कह सकता हूँ? नहीं, ये लफ्ज वापस लें कि इस्लाम से कोई तलक नहीं था जी मिर्जे का। जी जी, कोई ताल्लुक नहीं, फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये अपना नया मजहब लेके आना चाह रहा था। लेकिन मेरा दूसरा सवाल अपने मुसलमान भाइयों से ये भी है ना कि हमारी हदीसों में जो लिखा है, हम जो इस्लाम लेते हैं, हमारा भी तो पूरा इस्लाम 90% हदीसों से ही आ रहा है। ये भी तो देखे ना, सही मुस्लिम सही बुखारी से आ रहा है। किथे हदीस ते जी जी किथे मिर्जा कादियानी? हम्म, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਅੰਜਾਏ ਹੋ ਨਾ ਛੜਪੀ ਮਾਰ नहीं ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ हम ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। जब हम ਤੁਸੀਂ कुरान ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? सर हम मुसलमान है ना, हम अपनी बात भी तो करेंगे। तो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ? नहीं नहीं, मैं एक ਪਹੁੰਚ बात ਗਏ ਹੋ कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਆ ਜੇ, चले सर, ਬਾਅਦ मैं वो ਤੁਸੀਂ अपने ਇੱਕਦਮ ਛਲੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ नहीं नहीं, ਕਰਦੇ मैं ਹੋ? अपने अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। उसका एक अपना नया मजहब ਪਹਿਲੇ ਵੀ लेके ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ वाले भी लेंदे हो पे वापस। ये हाँ, अब वाले थोड़ी वापस ले रहा हूँ मैं। अब मुझे ये भी तो सवाल का जवाब चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ना करया करो, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ पर ਕਰੋ। तुसी कुरान दी ज्यादा नॉलेज रखते हो, हदीस दी ज्यादा नॉलेज रखते हो, गलत काम ते पर थोड़े ना करिया करो, तौबा कर लो, अल्लाह पाक खोलो, अजे दरवाजा खुला है ना, कर लो तौबा। अच्छा चलो, मैंने ये दसो, तुसी ज्यादा नॉलेज रखते हो, ठीक है, आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं,
तो मैं आपसे सवाल करूंगा ना, या मैं किसी एक आम लेमैन कर के पास ले, आप जाऊंगा? सवाल कर तो रहे हैं लेकिन सवाल गलत कर रहे हैं ना आप। सवाल आपने 2 बातें अभी की हैं वो गलत की। अच्छा उस्ताद जी, वो ऊपर पोस्टर है ना लगा हुआ मिर्जा इंजीनियर और बाकी शायद वो इन्होंने जो है ना देख लिया हो। नहीं नहीं, नजीर मेरा भाई आप मिर्जा इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं किसी को भी नहीं मानता। लो मैं जी। कुरान, उन्होंने मैं अपनी अल्लाह और दुकान उसके लग खोली रसूल, मैं अल्लाह और अपनी उसके रसूल के अलावा किसी को नहीं मानता। मनता अब ही बताएं, नहीं। बिल्कुल ठीक। अल्लाह नहीं, मुझे बताएं इस्लाम में क्या इजाजत है अल्लाह और उसके रसूल को किसी के अलावा मानने की? नहीं नहीं, लेकिन अल्लाह दे रसूल नु ते तुसी मनते हो, लेकिन अल्लाह दे रसूल ने ते नहीं क्या कि दाढ़ी मुंडाओ ते पुठे पुठे काम करो। एक तो केड़े काम तस्वीर ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ? जी जी, मेरी है, मेरी है। तो पहले दाढ़ी ते यार रख लो यार, अल्लाह दे रसूल ने ते है नहीं क्या दाढ़ी मुंडाया करो। अच्छा सर जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ सकता हूँ अगर इजाजत हो तो? चलो हुन साडे सवाल दा जवाब ना दिया जे सर मैं तो आपकी हर बात सब बोल कुछ रहा हूँ, साडे आप कोल ठीक है। पूछी जाओ। मैं तो कह रहा हूँ आप ठीक है, मैं गलत हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं सही हूँ। अच्छा मैंने एंड बोला वे ना कि इधर गल है वे चलदी मशीन दे विच ना हत्थ दईए ते जख्मी हो जांदा हत्थ ते इत्थे ना मशीन बड़ी तेजी नाल दौड़दी है पई ते ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਵੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਆੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਦਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੇ ਯਾਰ। ਸਾਰਾ ਕਾਸਮ ਮੌਜੂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਲਰ ਭੁਗਤਾ ਲਈਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਜੋ ਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਢੋਰਨੇ। जी जी शान साहब बोलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है शाह जी आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी चस कराई भेजे मैं ना जी। हाँ बिल्कुल है जी। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਸ ਆਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਸ ਆਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਇਲਮੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ ਬਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਕਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਸ ਆਏਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਚੱਸ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਜ਼ਾਕ। अच्छा यार मुंडियो सारे बवो भाई ते मैं जरा जाना है। हाँ जी, ते मैनू इजाजत दियो बस। चलो मेरी भी हाजरी लग गई, थोड़ा जा टाइम दे दिता है, इंशाल्लाह फिर मिलांगे जी सर जी, बहुत शुक्रिया। ते कासम वक्तन फवक्तन ऐलान करदा रहा कर कि जिन्हों किताबां चाहिदियां होन ओ मुफ्ती बशर दे पर्सनल ते राबता करो, यानी WhatsApp ते, समझे? मैं स्टिकर बना के ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह। अच्छा भाई रब जी ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह पाक सलामत रखे। तो मेरी नवी किताब आ रही है इल्हामी तिजारत, मिर्जा कादियानी की इल्हामी तिजारत। ए किताब अजे छपी कोई नहीं है, ए सिर्फ उंज प्रिंट आउट मैं कढ़िया। इंशाल्लाह इनू असीं हुण छपवाना लगे हैं जल्द अज जल्द। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इहदे गैबी असबाब मुहैया कर दे ते भी किताब छप। ऐसी किताब है, यकीन जानो। मिर्जा का ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਵਿੰਦਾ, ਖਾਬ ਵਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਖਾਬ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ कि मैं अज वो फलां चौधरी दे बारे ख्वाब वेखे कि नोटां दी बोरी मेरे को लैके आए। 2-3 दिन बाद ना इंतजार करता है मिर्जा कादियानी कि हो सकता है नवाब आ जाए बोरी नोटां दी लैके, क्योंकि ख्वाब ते मैं 3-4 दिन पहले वेखिया सी। लो जी 3-4 दिन बाद मिर्जा कादियानी अपने एक होर मरीद नूं उस नवाब दे कोल भेजदा है। आंदा ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ख्वाब ਵੇਖਿਆ ਸੀ
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाब ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਐਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਸਾ ਜੇ ਜੀਰਾ ਬਲੇਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਲਹਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਹਾਮ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਹਾਮ, ਛੋਟਾ ਇਲਹਾਮ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਹਾਮ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੰਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ ਨੋਟ ਜਨਾਬ ਕਮਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਇਹਨੇ। ਅਗਰ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਮਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਮਕੀ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਛਪ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ PDF ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ। किताब अजे नहीं छपी लेकिन PDF ਅਸੀਂ जारी कर दी है, PDF मिल जाएगी। मिर्जा कादियानी की इल्हामी थी ज़्यादा। अच्छा भाई, आजज की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 से ज़ायद किताबें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 50 से ज़ायद किताबें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनमें से कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी, ज़्यादातर तो ख़त्म हो गई हैं, वो नहीं है। तो पिछले दिनों मैंने बड़ी किताब फीस बिल्लाह तकसीम की है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अभी भी किताबें कुछ पढ़ी हैं, तो जिनको चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मिल जाएंगी जी। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको उम्रा। खैर खैर। मुफ्ती साहब एक गिला है कि जब से आपकी किताबें मेरे पास आई हैं ना, कादियानी कोई उठाता ही नहीं है मुझे भी ब्रॉड पे। नहीं, तुमने किताबें मंगवाने का हक अदा कर दिया। ये रिहान काज़मी ने हक अदा किया। मैं सही बता रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ कि इसने किया क्या है। इसने किया ये है, मेरी किताबों को पहले, किताबें भाई कितनी होंगी, इतना बंडल था मुफ्ती साहब, तकरीबन 6 या 7 किताबें तो थी उसमें। मोटी मोटी है ना? हाँ बिल्कुल। एक किताब इतनी मोटी थी, बिल्कुल ऐसी है। हाँ वो हाँ। मुजाहिद अमीरुल मुजाहिदीन अल खातम। हाँ जी, अल खातम। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी किताबें आपको फ्री दी थी हमने या पैसे लिए थे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी आपने, बिल्कुल फ्री। लेकिन डाक खर्चा आपसे लिया था। ऐसी है। तो ये सबको हमने ऐसे ही इसने किया ये कि मेरी किताबों के ऊपर एक एक हवाले। ओए चुप करके भाइयों, बंदरा बंदे दा पुत्र बनी लितर मैं मारूंगा। चुप करके। इसने मेरी किताबों के एक एक हवाले के ऊपर एक एक वीडियो बनाई। इसने एक एक हवाले के ऊपर एक, ये है काम। मैं ये चाहता था कि इस तरह का काम करें कि कम अज कम जो हमने किताबें लिखी हैं उसका पंजाबी कहने को मुल ते पवे ना यार। बिजनेस। हाँ बिजनेस है, बिजनेस। जैसे 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, हैं? करोड़ों रुपया लोगों से लेके मिर्ज़ा कादियानी ने कहा 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है। लिहाजा 50 किताबें लिखने का जो मैंने वादा किया था वो खत्म हो गया, और वो जो पैसा था वो मेरे जाती मसारफ के अंदर खर्च हो गया है। लक्की तवाइफ के कोठे के ऊपर लगाया मिर्ज़ा कादियानी ने वो पैसा, और लक्की तवाइफ के ऊपर उसके मुजरे के ऊपर फेंक दिया। है दंदियां कट हूं। आपका मौलवी कह रहा बिजनेस, शर्म तो नहीं होती। आपका मौलवी कह रहा बिजनेस, आपका मौलवी आपका मौलवी कह रहा बिजनेस। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मैं चलना था मौलवी साहब, कसम खुदा की आपका मौलवी कह रहा है बिजनेस। यूट्यूब पे चले जाए, आपका अपना मौलवी कह रहा है यार। आपका यार ये ना ਇਹਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਾਨ का मौलवी कह रहा है। ठीक है मेरे जान तो बाकियों को पैसे ਚੱਲਦਾ ਰੀਲੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮਿਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂਤਰਾ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦਰ मुखबर गाल नहीं करनी, मुखबर गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी। अच्छा संजय भाई, ये मरदई है, इसके साथ बात करनी है कि मैं, बल्कि ये बैठे हुए हैं रेहान भाई से करें बात। रहील से अभी जो जनाब देख लेते हैं। जी जी रहील साहब म्यूट हटाएं जनाब, क्या हाल है? मोटो साहब करना चाहता हूँ कि जी जो बात, सवाल सुन ले पहले। सवाल सवाल ये है मोहतरम कि 1974 में
1400 साल बाद एक असम्बली बैठी थी जहां में आपको सरकारी मुसलमान कहलवाया गया, तो क्या आपको हम सरकारी मुसलमान हकीकी